السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ ویقول الصیام ای ربی منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فیہ، روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو کھانے سے اور شہوات سے روکے رکھا، پس میری سفارش اس کے بارے میں قبول کریں۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيَشْفَعَانِ، اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، پس میری سفارش اس کے بارے میں قبول کریں، تو اللہ تعالی دونوں کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ روزے اور قرآن کی اہمیت اور قیامت کے دن ان کی سفارش کے بارے میں وضاحت کرتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ روزے اور قرآن کی عظمت اور فضیلت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن یہ سفارشی بنیں گے۔ کیسا خوش قسمت ہے وہ انسان، قیامت کا دن انتہائی سخت اور ہولناک ہوگا، جب ہر شخص اپنی نجات کے لیے فکر مند ہوگا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ دنیا کی کوئی حیثیت ہوگی، لیکن کچھ نیک اعمال ایسے ہوں گے جو بندے کی شفاعت کریں گے۔ اس حدیث میں دو خاص اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، روزہ اور قرآن۔ روزے کی سفارش، روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن کے وقت کھانے سے، پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ یہ الفاظ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ روزہ محض بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات پر قابو پانے کا نام ہے۔ جو شخص روزے کی روح کو سمجھ کر اسے اپنائے گا، قیامت کے دن یہی روزہ اس کے حق میں سفارش کرے گا اور اس کے درجات جو ہے وہ بلند ہوں گے۔ تو قرآن کی سفارش، قرآن کیا کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، پس اس کے حق میں میری سفارش قبول کر۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور تہجد میں اس کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو جو شخص قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، وہ قیامت کے دن بے یار و مددگار نہیں ہوگا، بلکہ خود قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا، تو اللہ تعالی سفارش قبول فرمائے گا۔ تو حدیث کے آخر میں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ روزے اور قرآن کے حقوق ادا کرے گا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس پر رحم فرمائے گا اور اس کی مغفرت اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ روزے کو صرف ظاہری طور پر نہ رکھا جائے، بلکہ اس کی روح کو سمجھ کر اپنی خواہشات پر قابو جو ہے وہ پایا جائے۔ قرآن کو صرف رسمی طور پر نہ پڑھا جائے، بلکہ اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے قرآن پر، اور اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ قیامت کے دن نجات کے لیے بہترین ذریعہ یہی دو چیزیں ہوں گی، اس لیے دنیا میں ان سے مضبوط تعلق ہو۔ یہ حدیث ایک مومن کے لیے امید اور خوشخبری کا پیغام ہے کہ اگر وہ روزے اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو آخرت میں یہ دونوں اس کی نجات کا سبب بنیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور روزہ ڈھال ہے، بس جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ فحش کلام کرے اور نہ شور و غوغا کرے۔ اگر کوئی اسے گالی بھی دے دینا یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ جل شانہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
लिस्साइम फरहतान, रोजादार के लिए दो खुशखबरियां हैं। यफरहुमा इज़ा अफ्तर फरिहा, एक खुशी जब वो इफ्तार करता है, व इज़ा लकिया रब्बहु फरिहा बिसौमिही, दूसरी खुशी इस वक्त हासिल होगी जब वो अपने परवरदिगार से मिलेगा, इस वक्त वो अपने रोजे से खुश होगा। तो ये रवायत बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। तो रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर नेक अमल का अजर फरिश्तों के जरिए मुकर्रर फरमा दिया, मगर रोजे को अपने साथ खास कर दिया। इसका मतलब है कि इसकी जजा इतनी अजीम है, रोजे की जजा इतनी अजीम है कि कोई फरिश्ता, कोई पैमाना इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। अल्लाह खुद ही इसका बदला देंगे, और जब देने वाला खुद अल्लाह हो तो तसव्वुर करें कितना अजीम इनाम होगा। रोजा ढाल है, जैसे एक सिपाही अपनी हिफाजत के लिए ढाल का इस्तेमाल करता है, इसी तरह रोजा भी हमारे गुनाहों से, जहन्नम की आग से और शैतान के हमलों के खिलाफ एक ढाल है। तो रोजा रखने वाला अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की मशक करता है, अपनी जबान को फहश गोई से रोकता है और अपने नफ्स को काबू में रखता है। ये दर हकीकत सब्र, तकवा और अल्लाह की मोहब्बत का अमली मुजाहरा है। अगर कोई इसे गाली दे या इससे झगड़ा करे तो वो कह दे मैं रोजे से हूं, मेरा रोजा है। जिंदगी में हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें इश्तियाल दिलाते हैं, हमें सब्र का इम्तिहान, वो हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं, लेकिन रोजादार को हुक्म दिया गया कि वो इनके जवाब में सब्र करे, क्योंकि रोजादार सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए अपने अखलाक को संवारने वाला होता है। रोजादार वो जानता है कि इसका मामला अल्लाह की जात के साथ है और वह हर हाल में अल्लाह को राजी रखना चाहता है। रोजादार के मुंह की जो बू है वो अल्लाह के नजदीक मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। इस दुनिया में लोग मुंह की जो बदबू होती है, मुंह से जो बदबू आती है, इसको नापसंद करते हैं, मगर अल्लाह के नजदीक इस बू की एक खास कदर कीमत है। क्यों? क्योंकि ये इसकी रजा के लिए जो है इस आदमी ने कुर्बानी की, रोजा रखा। एक आशिक महबूब की राह में हर तकलीफ को मुस्कुराहट के साथ बर्दाश्त करता है, वैसे ही रोजादार अल्लाह की मोहब्बत में अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करता है। रोजादार के लिए दो खुशियां हैं। जब वो इफ्तार करता है, ये खुशी महज खाने पीने की नहीं बल्कि इस एहसास की है कि इसने दिन भर अपने रब की रजा के लिए सब्र किया और अब वो इनाम के लम्हे में है। जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा, ये वो खुशी है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब बंदा क़यामत के दिन अपने रब के सामने खड़ा होगा और अल्लाह फरमाएंगे ये मेरा बंदा है, इसने मेरी खातिर भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, ये मेरी मोहब्बत में रहा, आज मैं इसे ऐसा इनाम दूंगा जो किसी के ख्वाब व ख्याल में भी नहीं है। तो ये हदीस हमें बताती है, ये सिखलाती है कि रोजा महज खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने और अपने नफ्स को काबू में रखने और अखलाक को निखारने, सब्र और इस्तिकामत सीखने और आखिरत की खुशियों के लिए अपने दिल को तैयार करने का एक बेहतरीन जरिया है। जब आप रोजा रखें तो इसे एक आम इबादत ना समझें कि ये आम मामूली इबादत है, बल्कि ये महसूस करें कि आप अल्लाह के खास बंदे हैं और वो आपको अपनी खास नेमतों से नवाजने वाला है। अल्लाह हमें रोजे की हकीकत को समझने की और इसकी रूहानी बरकतों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नहु यतरुकु तआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली अस्सियामु ली व अन अज्ज़ी बिही। बेशक वो रोजादार मेरे लिए अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश नफसानी को छोड़ देता है। रोजा मेरे लिए है और मैं अल्लाह ही इसका बदला दूंगा। बुखारी शरीफ में यह रिवायत मौजूद है। तो हदीस रोजे की अजमत को बयान करती है कि रोजादार सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपनी बुनियादी जरूरियात को तर्क कर देता है और अल्लाह इसका अजर अपनी खास रहमत से अता फरमाता है। यह हदीस रोजे की हकीकी रूह और इसके बेमिसाल अजर को बयान करती है। गौर कीजिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बेशक वो रोजादार मेरे लिए अपना खाना पीना और अपनी ख्वाहिश को छोड़ देता है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी गरज से कुर्बानी देता है। कुछ लोग
पैसे के लिए, कुछ इज्जत के लिए, कुछ दुनियावी कामयाबी के लिए। मगर रोजादार वो हस्ती है जो न किसी दुनियावी मनफत के लिए भूखा रहता है, न किसी इंसान को खुश करने के लिए प्यास बर्दाश्त करता है, न किसी वक्ती फायदे के लिए अपनी ख्वाहिशात रोकता है। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ये गैर मामूली मोहब्बत का इजहार है। तो रोजादार का हर लम्हा अल्लाह के लिए कुर्बानी का ऐलान करता है। जब वो खाने को देकर भी हाथ नहीं बढ़ाता, हाथ पीछे खींच लेता है, पानी देकर भी वो अपनी प्यास नहीं बुझाता, जब वो अपनी जायज ख्वाहिशात पर भी काबू रखता है, तो दर हकीकत वो अपने अमल से कह रहा होता है, या अल्लाह मुझे तेरी रजा दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज है। मैं तेरी मोहब्बत में भूखा हूं, मैं तेरी मोहब्बत में प्यासा हूं, तेरी मोहब्बत में अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर रहा हूं। अल्लाह तू राजी हो जा। रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। अल्लाह ने हर नेक अमल का जो अजर है ना, वो फरिश्तों के जरिए मुकर्रर किया है, मगर रोजे को अपने लिए खास कर दिया। इसकी जजा ऐसी है जो न फरिश्तों के हिसाब में आ सकती है, न किसी पैमाने में वो समा सकती है। ये वो इबादत है जिसका बदला खुद अल्लाह जल्ले शानुहु ने देने का वादा फरमा रखा है। तसव्वुर करें, क़यामत का दिन है, हर शख्स अपने अमाल की जज़ा और सज़ा के इंतजार में खड़ा है। अचानक अल्लाह रोजादारों को बुलाकर फरमाते हैं, ये मेरे खास बंदे हैं जिन्होंने सिर्फ मेरी खातिर भूख बर्दाश्त की, प्यास बर्दाश्त की, ख्वाहिशात है उस पर काबू पाया। आज मैं इन्हें वो इनाम दूंगा जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं होगा। और फिर रोजादारों को वो इज्जत दी जाएगी, फिर वो मकाम दिया जाएगा और वो जन्नत मिलेगी जो किसी और इबादत का सिला नहीं हो सकती। तो ये हदीस हमें बताती है कि रोजा सिर्फ एक रस्म जो है वो एक रस्म नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत में एक अजीम कुर्बानी है। ये हमारी रूह को पाक करता है, हमारे दिल को नरम करता है और हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। जो शख्स रोजे को इसकी हकीकत के साथ रखेगा, वो न सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करेगा, बल्कि वो अल्लाह की मोहब्बत के नशे में सरशार होगा। अल्लाह हमें रोजे की हकीकत को समझने की, इसकी बरकतों को समेटने की और इसके जरिए अपने रब को राजी करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।